last lecture, we have covered the calculations related to the lab efficiency. In this lecture, we will see about the card calculations. Right. Card calculations means calculations related to the carding machine. Everyone knows what is carding, what is the use of carding. Right. You have studied the carding machine and manufacturing. So I am expecting that you are knowing the fundamentals of carding. You are knowing the basic mechanisms. You are knowing the gearing, right? So I'm expecting that, and we are proceeding with the numericals based on card calculations. So very first numerical is the cylinder pulley of a card has a diameter of 48 centimeter and the required cylinder speed is 170 RPM. The pulley on the line shaft has a diameter of 36 centimeter. If the belt is 0.6 centimeter thick and belt slippage of 2% is assumed, what line shaft speed is required? So this calculation is related to the gearing. Numerical is related to the gearing. So what is the given data? Data here. You read the numerical. You first write down the numerical on your book. I will give you 2 minutes. You first write down the numerical on your notebook. Was ready? Yes. Written the numerical. Start now. Sound. अरे आवाज बंद करो. इसका आवाज आ रहा है. म्यूट क्या करो. और आई एम रिक्वेस्टिंग, आप लेक्चर कर रहे हो, ऐसे जगह पे बैठो जहाँ पे शांतता है. आगे टीवी चालू है, गाना चालू है, एंड यू आर learning. This is not a proper way of learning. It seems that you are not serious regarding your education. है ना. जो भी, सबको नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी अभी ये सुनाई दिया, दिस इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली. आप वाइज है, बच्चे तो है नहीं आप, ठीक है ना. तो ऐसे जगह पे बैठो जहाँ पे पीस है और आप अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई कर सको. मैं आपके बेटरमेंट के लिए बता रहा हूँ. देखो क्या करते हैं आप. हमारा काम है आपको बताना, वो बता दिया मैंने. अच्छी जगह पे बैठ के, शांत जगह पे बैठ के लेक्चर्स करना है, पढ़ाई करना है. ठीक है. तो क्या दिया है यहाँ पे? द सिलेंडर पुली ऑफ अ कार्ड
has a diameter of 48 centimeter, right? And the required cylinder speed is 170 rpm. So obviously everyone knows what is cylinder and all those things, right? So I will not go in that part. So now see, this is a cylinder, we can say. The cylinder pulley of a cart, right? So obviously there will be a pulley which runs the cylinder, actually which drives the cylinder. This pulley is there, which has a diameter of 48 centimeter, which has a diameter of 48 centimeter, and the required cylinder speed is 170 rpm. It means what? They have also given the speed of cylinder. It is required, but it is to be there. It means what? The speed of cylinder is rpm, 170 rpm, sorry. Now the pulley on the line shaft has a diameter of 36 centimeter. There will be a shaft, which actually runs the cylinder pulley, right? So we can say that there will be a line shaft. Suppose this will be the line shaft. This will be the line shaft. This line shaft has got speed from the driving mechanism. It might be the motor. मोटर से ड्राइव आता होगा. यहाँ पे क्लियर नहीं किया उन्होंने. यहाँ पे क्या क्लियर किया उन्होंने? लाइन शाफ्ट है. देयर इज अ लाइन शाफ्ट. देयर इज अ लाइन शाफ्ट. और उसको एक पुली है. लाइन शाफ्ट को एक पुली है. It also carries a pulley. Obviously, this is a driving mechanism. It means what? It should carry the pulley. Pulley or gear, anything, depends on the gearing. So here you will have another pulley, that is line shaft pulley, right, which has a diameter of 36 centimeter, The connection to the cylinder and line shaft is given by the use of belt drive. So I will draw here belt drive. Right. So this is belt drive. If this belt is 0.6 centimeter thick, this belt is 0.6 centimeter thick, 0.6 centimeter thick, and a belt slippage is of 2%. और स्लिपेज क्या है यहाँ पे? 2% है. स्लिपेज क्या है? 2%. ऑब्वियसली बेल ड्राइव है तो वहाँ पे स्लिपेज होने वाला है. बेल ड्राइव है तो वहाँ पे स्लिपेज होने वाला है. तो बेल्ट स्लिपेज इज 2% और उसका थिकनेस है 0.6 सेंटीमीटर. तो उन्होंने पूछा है व्हाट लाइन शाफ्ट स्पीड इज रिक्वायर्ड. लाइन शाफ्ट स्पीड क्या मिलेगा आपको? मतलब इसका स्पीड पूछा है. आरपीएम ऑफ दिस. कैसे निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है क्या? क्योंकि आपने ऑलरेडी इस टाइप के प्रैक्टिकल्स किए हैं. गियरिंग मैकेनिज्म आपको पता है. तब प्रैक्टिकल में आपको गियरिंग मैकेनिज्म पढ़ाया होगा. ऐसा मैं समझ के जा रहा हूँ. इसका स्पीड आपको निकालना है. एक तो यहाँ पे देखो स्पीड निकालना है तो मोटर मालूम होना जरूरी है. मोटर का स्पीड क्या है वो मालूम होना जरूरी है. मोटर पुली का डायमीटर क्या है, फिर मोटर पुली से कौन से शाफ्ट को जा रहा है ड्राइव, उस शाफ्ट का पुली का डायमीटर क्या है, वो सारी चीजें पता है. लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि आपको मोटर से ही पूरा अंदाजा आएगा. गियरिंग में पैक गियरिंग कैलकुलेशन से भी आप निकाल सकते हो. यहाँ पे कुछ चीजें भी दी है आपको, जैसे कि जिसको ड्राइव गया है फाइनली सिलेंडर, उसका स्पीड दिया है आपको 170 आरपीएम. वो रिक्वायर्ड है बट वो आएगा वहां पे अगर इसका स्पीड बराबर रहेगा तो इसीलिए इसका स्पीड आपको ढूंढना है. 170 आने के लिए इसका स्पीड कितना होगा, इन शॉर्ट वही ढूंढना है आपको. तो लाइन शाफ्ट स्पीड यहाँ पे निकालना है आपको. कितना लगेगा लाइन शाफ्ट स्पीड बाय कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग. बेल ड्राइव इज देयर, 2% स्लिप. Sir, line shaft 2 to 6 RPM.
क्लास में से मैं बाहर पड़ा, आपको बताना चाहिए था व्हाट्सएप पे, सर यू आर नॉट इन क्लास। पता नहीं क्या एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कैसे बाहर फेंक दिया मुझे। आपको कहाँ तक सुनाई दिया बताओ, अभी कहाँ तक मैं बता रहा था? पता नहीं अब कब से डिस्कनेक्ट हो गया क्लास से। हेलो, लाइन शाफ्ट कितना है सर, वो बताया था। लाइन शाफ्ट क्या? कितना आएगा वो पूछ रहे थे आप, उसका स्पीड कितना आएगा? उसके आगे कुछ भी नहीं सुनाई नहीं दिया। उसके बाद नहीं सुनाई दिया सर। ये कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नो सर। ये डायग्राम तो निकालने चालू किया था कि नहीं किया था मैंने? यस सर, वो हो गया था, डायग्राम वगैरह हो गया था। और फॉर्मूला? फार्मूला नहीं हुआ था सर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ चीज़ होता है तो एटलीस्ट कॉल करने का मुझे। कभी कभी मैसेज मैं देखता ही नहीं, क्योंकि पढ़ाते समय मोबाइल को देखता नहीं मैं। ऐसा अगर हुआ तो कॉल कर देने का मेरे को डायरेक्टली। क्या होता है, मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, कभी कभी ये जो रहता है वो बाहर चला जाता है, और मैं इसके ऊपर लिखता हूँ, तो इसको मैं अगर मुझे बाहर निकलना है तो इसको पहले डिस्कार्ड करना पड़ता है, इसलिए मैं इसको बाहर नहीं निकाला। जब मुझे लगा कि मैं खुद ही एक अकेला ही बोल रहा हूँ, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है करके। हर बार ये मेरे सामने नहीं रहता है, कभी कभी बाहर चला जाता है। ठीक है, तो लाइन शाफ्ट स्पीड अब मैं फाट जाता हूँ, क्योंकि बहुत एक्सप्लेन किया था मैंने, अब फाट जाता हूँ मैं। लाइन शाफ्ट स्पीड निकालना है तो हम ड्राइविंग मैकेनिज्म से जा सकते हैं, ड्राइवर अपन ड्रिवन रूल से। ये सिलेंडर का स्पीड है, तो इसको हम पकड़ सकते हैं और ड्राइवर अपन ड्रिवन रूल फॉलो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने फॉर्मूला यहाँ पे एक ड्राइव किया। लाइन शाफ्ट स्पीड इज इक्वल टू सिलेंडर आरपीएम, ये जो सिलेंडर का आरपीएम है, इनटू सिलेंडर पुली डायमीटर डिवाइडेड बाय लाइन शाफ्ट पुली डायमीटर, डिवाइडेड बाय लाइन शाफ्ट पुली डायमीटर। ओके, अब ये यहाँ तक कैलकुलेशन करोगे तो आपको लाइन शाफ्ट का स्पीड आएगा, तो आपको लाइन शाफ्ट का स्पीड आएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बेल्ट भी है, बेल्ट को कुछ थिकनेस है, बेल्ट ड्राइव हमने यूज किया है, सो बेल्ट हैज अ थिकनेस, और ये बेल्ट हम इस पुली के ऊपर से रन करते हैं, वी यूज टू run it over the pulley, right? So we have to consider the diameter of belt also, we have to consider diameter of belt also। तो इसीलिए फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, सिलेंडर पुली डायमीटर प्लस बेल्ट थिकनेस, सिलेंडर पुली डायमीटर प्लस बेल्ट थिकनेस डिवाइडेड बाय लाइन शाफ्ट पुली डायमीटर प्लस बेल्ट थिकनेस, प्लस बेल्ट थिकनेस। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब आप इसमें वैल्यूज डालो और स्पीड निकाल के बताओ मुझे कितना आता है। Two to 5.59. How much? 2 to 5. point 0.59. 59 RPM. Yes, sir. RPM. Okay. So 2 to 5.59 RPM is the speed of line shaft speed. But is it true speed of the line shaft? Is it true speed of the line shaft? नो सर। नो सर। ये ट्रू स्पीड नहीं है इसका। अब
ये इसका ट्रू स्पीड नहीं है, क्योंकि क्या बोला है हमने और क्या कंडीशन यहाँ पे दिया है, बेल्ट स्लिपेज इज 2%। तो बेल्ट स्लिपेज 2% हो रहा है, मतलब कुछ तो स्पीड लॉस हो रहा है, एक्चुअल स्पीड से कुछ तो स्पीड लॉस हो रहा है, मतलब इसका एक्चुअल स्पीड अलग है, इसका एक्चुअल स्पीड अलग है। इसमें आपको क्या मिलाना पड़ेगा, बेल्ट स्लिपेज मिलाना पड़ेगा, बेल्ट स्लिपेज को कंसिडर करना पड़ेगा। यू हैव टू कंसिडर द बेल्ट स्लिपेज, you have to consider the belt slippage. So we'll consider how much is the belt slippage, 2%. So this is your speed. So by considering the belt slippage, what we have to do, 2 to 5.59 प्लस बेल्ट स्लिपेज ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेल्ट स्लिपेज 2 to 5.59 into 2% is the belt slippage, right? So as it is percent, I will take here 100. Now you do this calculation. We have added here the belt slippage. You will get the answer. कितना आता है बताओ? कितना आता है? 45,343. एक मिनट, जल्दी हुआ क्या? I will calculate. नहीं सर 230 RPM. 230.1. 0.59. नहीं, कुछ तो गलती क्या है, देखो 230 वाला सही है सर 230 RPM आ रहा सर. 230.10. हाँ 230.10 आया, मैंने जब कैलकुलेशन किया तो 231 और 230 इज राइट आंसर. 230 RPM, 230 RPM. आपने क्या किया देखो, जिसने भी थाउजेंड्स में बताया हो, 225.59 प्लस 225.59 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, तो ये कुछ तो तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग आता है कुछ तो इसका आंसर, बराबर है ना? 4 पॉइंट समथिंग आता है इसका आंसर. तो ये 225.59, हाँ 4.50, राइट. 225.59 प्लस 4.5, 230, सिंपल. So answer is 230 RPM. Answer is 230 RPM. तो ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? No, sir. ओके चलो फिर आगे चलते हैं. ये यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया है. बुक वाले ने थोड़ा सा अलग प्रोसेस से किया है, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली फार्मूला में डाला है स्लिपेज भी, तो आपका 230 आ जाता है वो. मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल वे में बताया, इन्होंने फार्मूला में ही बेल्ट स्लिपेज डाला है. यहाँ पे 98/100 अगर डिनोमिनेटर में लेते हो तो दैट इज एज गुड एज 2% ऑफ द वैल्यू यू गॉट, वही रहता है वो. दैट इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. मेरे हिसाब से गए तो भी आपको आंसर वही आने वाला है, इनके हिसाब से गए तो भी वही आने वाला है. ओके, नाउ another problem. Again it is related to the gear calculations of car. Write down this numerical. The sprocket on the motor shaft has 20 teeth. If the motor speed is 1200 RPM, how many teeth required on the cylinder sprocket to give a cylinder speed of 170 RPM?
ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है। पहले वाले केस में बेल ड्राइव दिया था, अब यहाँ पे स्प्रॉकेट ड्राइव है। तो आगे वही कंसेप्ट है, सिलेंडर है ना। यहाँ पे गियर रहेगा, और एक मोटर शाफ्ट है, मोटर है, मोटर से ड्राइव आया है, ड्राइव हैज कम फ्रॉम द मोटर। ये इतना दूर नहीं निकालते, मैंने आपको निकाल के बताया, इतना दूर रहता नहीं है। मोटर शाफ्ट के ऊपर भी एक स्प्रॉकेट है, तो यहाँ से वो ड्राइव गया है, स्प्रॉकेट ड्राइव। ये जो शाफ्ट है इसका टीथ है, सॉरी, ये जो स्प्रॉकेट है इसका टीथ है 20, और सिलेंडर का जो है वो पूछा है, सिलेंडर का पूछा है, और सिलेंडर का आरपीएम बताया है 170 चाहिए उनको, 170 चाहिए, और मोटर का आरपीएम दिया है उन्होंने 1200 आरपीएम, मोटर का आरपीएम दिया है 1200 आरपीएम। अब कैसे करेंगे हम, अब कैसे करेंगे बताओ। इसका निकालना है, हम इसको नाम दे देते ए और इसको नाम दे देते बी, स्प्रॉकेट ए एंड स्प्रॉकेट बी। आपको स्प्रॉकेट बी निकालना है, तो स्प्रॉकेट बी निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? आपका गेयरिंग इतना वीक क्यों है रे? गेयरिंग तो आपको वाइंडिंग में मैंने पढ़ाया था, when I have conducted the winding practical, and fortunately that practical you have performed here in institute physically. I have taken the gearing calculations of winding machine. मशीन कौन सा भी हो, गियरिंग कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट तो बदलता नहीं ना कभी, तो वैसे ही रहने वाला है गियरिंग। बच्चा लोग सर ऐसा, मोटर आरपीएम into 20 upon required tit equal to 170. यस, वेरी सिंपल थिंग, राइट, वेरी सिंपल थिंग। Again you have to use driver upon driven rule, again you have to use driver upon driven rule, so we'll use it। यहाँ पे हम सिलेंडर आरपीएम ले लेंगे फॉर्मूला को बनाने के लिए। सिलेंडर आरपीएम इज इक्वल टू, कैसे निकाल सकते हैं सिलेंडर आरपीएम? सिलेंडर आरपीएम अगर निकालना तो ड्राइव कहाँ से आ रहा है वो देखना पड़ेगा। सिलेंडर आरपीएम निकालना है तो ड्राइव कहाँ से आ रहा है उसको वो देखना पड़ेगा। अब देखो ड्राइव कहाँ से आ रहा है, हम पीछे जाते हैं, इसका कनेक्शन कहाँ पे बी को है, बी का कनेक्शन कहाँ पे ए को है, ए का कनेक्शन कहाँ पे मोटर को है, इसका मतलब है मोटर से ड्राइव आ रहा है। तो विल टेक हियर मोटर आरपीएम, मोटर आरपीएम into driver upon driven. Who is driver? This one A. Who is driven? B. बस इधर तक ही आएगा, क्योंकि इससे आगे स्पीड इसको मिल रहा है सिलेंडर को, तो यहीं तक आपको आना है। ये रूल बताता है ड्राइवर अपॉन ड्रिवन का, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। अब इसमें आपको क्या क्या है, आपके पास सिलेंडर आरपीएम है, आपके पास मोटर आरपीएम है, आपके पास ए है, आपको बी निकालना है, आपको बी निकालना है। So very simple task. So we can take B. B is equal to, is that sprocket actually, right? Motor RPM into A divided by cylinder RPM, divided by cylinder RPM. निकाल के बताओ मुझे कितना आता है sprocket of the cylinder, कितना आता है? 140. 1 4 20 1 141. 140.
141 टीथ, ओके बराबर है। सो योर आंसर इज 141 टीथ। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देयरफॉर द टीथ रिक्वायर्ड ऑन द सिलेंडर स्प्रॉकेट इज 141। ठीक है, देयरफॉर द टीथ रिक्वायर्ड ऑन सिलेंडर स्प्रॉकेट is 141. So like this you have to solve this numerical. इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व करना है। ये देखो आपका ऐसा लग रहा है मुझे कि गियरिंग कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका वीक है, उसको प्रैक्टिस करो। मैंने आपको पढ़ाया था, फिर राठौड़ सर ने पढ़ाया होगा मल्टीपल टाइम्स, है ना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ाया होगा राठौड़ सर ने आपको। बहुत से मशीन है ना वहाँ पे स्पिनिंग में, कार्लिंग है, ड्रॉप फ्रेम है, कोम्बर है, स्पीड फ्रेम है, रिंग फ्रेम है, हर एक मशीन को गियरिंग कैलकुलेशन है, गियरिंग डायग्राम्स बताए होंगे सर ने। हर एक मशीन का गियरिंग डायग्राम थ्योरी में तो पढ़ाया होगा एटलीस्ट, ड्राइव कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे जाता है। ठीक है, यू प्रैक्टिस इट, और ये न्यूमेरिकल जैसे मैंने बताया उस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम में वैल्यूज वगैरह चेंज होके आ सकते हैं, तो उस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। You can see here I have solved this numerical. Okay. Now we will see card gearing calculation. Now we will see card gearing calculation. कार्ड गियरिंग कैलकुलेशन, उसको हम सीखेंगे अब, कार्ड गियरिंग को। एक कार्डिंग मशीन का गियरिंग डायग्राम यहाँ पे दिया है। यू कैन सी द गियरिंग ऑफ कार्डिंग मशीन। एक पर्टिकुलर मॉडल है, उस मॉडल का उन्होंने बुक वालों ने एक गियरिंग दिया है। ये गियरिंग डिपेंड्स ऑन मॉडल चेंज हो जाएगा, जैसे अलग अलग मॉडल्स है कार्ड के, है ना, जैसे कि हटपॉट कार्ड रहेगा या डीके 780 कार्ड रहेगा, मॉडल के हिसाब से ट्रूजलर का कार्ड है, रिटर का कार्ड है, तो उनके हिसाब से गियरिंग चेंज होंगे, बट बेसिक बदलेगा नहीं। ड्राइविंग कैसे जाता है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, हमेशा ड्राइव मोटर से ही आएगा, मोटर शाफ्ट से फिर मशीन शाफ्ट को आएगा और मशीन शाफ्ट से आगे चला जाएगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, अब कार्डिंग मशीन में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं ये बताने की जरूरत है नहीं आपको मेरे हिसाब से। कार्डिंग मशीन में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं तो बताने की जरूरत है नहीं। ओल्ड टाइप ऑफ कार्डिंग मशीन है, मॉडर्न कार्डिंग में फीड हम चूट फीड सिस्टम से करते हैं। ये ओल्ड टाइप है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लैप रोलर दिख रहा है। ये ओल्ड टाइप ऑफ कार्डिंग मशीन है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लैप रोलर दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, यहाँ पे देखना क्या है कि ड्राइव कैसे गया है, ड्राइव कैसे गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ड्राइव जो आया है वो मोटर से आता है। सबसे पहले तो ड्राइव कहाँ से आता है, मोटर से आता है। इस गियरिंग में मोटर दिखाया नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज दिखाया उन्होंने, फास्ट पुली एंड लूज पुली। फास्ट पुली एंड लूज पुली जनरली ये मोटर से रिलेटेड रहता है। सो मोटर से ड्राइव इन दो पुली को आता है और इन दो पुली से इस शाफ्ट को आता है, और इस शाफ्ट के ऊपर कौन है, सिलेंडर है। इस शाफ्ट के ऊपर कौन है, सिलेंडर है। तो इसका मतलब क्या है, मोटर किसको डायरेक्टली रन कर रहा है, मोटर इज ड्राइविंग डायरेक्टली टू सिलेंडर, जो कि कार्डिंग का हर्ट है सिलेंडर। तो उस सिलेंडर को हम रोटेट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ मोटर, राइट, बाय द हेल्प ऑफ मोटर, और फिर यहाँ से ड्राइव जारी हो जाएगा। अब कार्ड में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, कार्ड में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, सब यहाँ पे दिए, सब यहाँ पे दिए। सिलेंडर रहता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्ड का। टेकर इन रहता है, कभी कभी आप इसको
लिकरिन भी बोलते हो, कभी कभी आप इसको क्या बोलते हो, लिकरिन बोलते हो। तो ये रहता है, आगे डॉफर रहता है, दिस इज आगे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोलर्स है, एक सिलेंडर है, एक टेकरिन है, एक डॉफर है। ठीक है, आगे डॉफर रहता है, पीछे लिकरिन रहता है, बीच में सिलेंडर रहता है, राइट। अब टेकरिन को मटेरियल आपको फीड करना है। एक्चुअली मटेरियल का फ्लो कैसे रहता है, टेकरिन को मटेरियल मिलेगा, टेकरिन से मटेरियल सिलेंडर को जाएगा, सिलेंडर से डॉफर को जाएगा और डॉफर से आगे जाएगा डॉफर कोम को, और वहां से कैलेंडर रोलर थ्रू कैन में जाएगा, कैलेंडर रोलर थ्रू कैन में जाएगा। तो ये मटेरियल फ्लो रहता है। तो सबसे पहला रोलर कौन सा आएगा, फीड रोलर आएगा। तो यहाँ पे फीड रोलर है। अब यहाँ पे हमें लैप फीड करना है तो लैप रोलर का भी यूज होगा। हमें यहाँ पे लैप को फीड करना है तो हमें लैप रोलर की भी जरूरत गिरेगी। तो सबसे पहले रहेगा यहाँ पे लैप रोलर, लैप रोलर के बाद आएगा फीड रोलर, फीड रोलर के बाद आएगा टेकरिन, टेकरिन के बाद आएगा सिलेंडर, सिलेंडर के बाद आएगा डॉफर, डॉफर के बाद आएगा डॉफर कोम, उसके बाद में आएगा कैलेंडर रोलर, उसके बाद में आएगा कैलेंडर रोलर। तो इन सारे एलिमेंट्स को ड्राइव कैसे गया है ये हम देखेंगे। यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स को ड्राइव कैसे गया है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि सिलेंडर को ड्राइव मोटर से मिला है, सिलेंडर को ड्राइव मोटर से मिला है। यहाँ पे एक शाफ्ट दिख रहा है आपको, तो होल्ड, ये देखो ये शाफ्ट है और ये पुलीज है, फास्ट पुली लूज पुली। तो वहां से ड्राइव सिलेंडर को मिला है। अब सिलेंडर से आगे एक शाफ्ट आ गया है, ऑब्वियसली आना ही चाहिए। ठीक है, इस शाफ्ट के ऊपर क्या है, आपका सिलेंडर है। अब मुझे बताओ कि ड्राइव कैसे कैसे गया है। मैं आपको नाम बताता हूँ रोलर का और फिर बताने का। आपको रोलर का नाम बताऊंगा मैं, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि ड्राइव कैसे गया है। पहले मैं हटा देता हूँ। अब मुझे बताओ टेकरिन को ड्राइव कैसे गया है। सर फास्ट पुली से सिलेंडर, फिर सिलेंडर से टेकरिन को गया है सर। ऐसे मत बताओ, यहाँ पे सब दिया है, यहाँ पे गियर दिया है, गियर के नाम दिए हैं। फास्ट पुली से सिलेंडर को गया, सिलेंडर से कौन से पुली को गया, कौन से पुली से कौन से पुली को गया, ऐसे बताओ ना, कौन से शाफ्ट को गया। सिलेंडर से कहाँ पे गया ड्राइव, बी पर। बी पर गया, सिलेंडर पुली को। सिलेंडर पुली पे गया। बी टू सी सर। एग्जैक्ट वर्ड है सिलेंडर पुली। ठीक है, सिलेंडर पुली बी पर गया, क्योंकि उसी सिलेंडर के ऊपर और एक पुली भी है, छोटा बी भी है। तो सिलेंडर से सिलेंडर पुली कैपिटल बी को गया, कैपिटल बी से जो डिनोट किया है वो पुली पे गया। और उस पुली सिलेंडर पुली से कहा गया ड्राइव, कैपिटल सी। टेकरिन यस, वो पुली। कौन सा, टेकरिन पुली, टेकरिन पुली को गया। और टेकरिन पुली को कौन अटैच है, टेकरिन शाफ्ट, ऑब्वियसली उसके ऊपर टेकरिन है फिर। तो यहाँ तक काफी है। तो सिलेंडर, सिलेंडर से ड्राइव बी को सिलेंडर पुली, सिलेंडर पुली से टेकरिन पुली, बस इस तरीके से ड्राइव गया है टेकरिन को, इस तरीके से ड्राइव गया है टेकरिन को। चलो अभी टेकरिन का तो समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे अब बताओ डॉफर को स्पीड कैसे गया है, हाउ द स्पीड इज गिवन टू द डॉफर, हाउ द स्पीड इज गिवन टू द डॉफर। बताओ डॉफर को स्पीड कैसे गया है।
अरे डॉफर को कैसे गया बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? सर डी टू कैपिटल एफ सर इंटरमीडिएट शाफ्ट। ओके, शुरू से बताओ, शुरू से सिलेंडर से कहाँ ड्राइव गया, कहाँ से कहाँ गया वो बताओ। कभी भी स्टार्ट करना है सिलेंडर से, बाद में देखेंगे हम बीच वाले रोलर कैसे लेना है। Cylinder H shaft to J सिलेंडर शाफ्ट टू जी, wheel sir। हाँ फिर फिर J को गया वो shaft। जी को तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं गया। सर सिलेंडर से सिलेंडर जो पुली है बी वाली कैपिटल बी उधर गया। उसके बाद जो कैपिटल सी है मतलब टेकरिंग पुली वो उधर गया। राइट उसके राइट बाद जो टेकरिंग का अनदर पुली है सर डी, राइट उधर से ई को गया सर कैपिटल। राइट उसके साइड में और एक पुली है सर एफ करके, तो राइट, उधर जो है इंटरमीडिएट शाफ्ट करके बराबर वो सर कैपिटल जी को गया। वो अनदर बराबर, पुली है सर। हाँ उसके बाद सर एच है कैपिटल यस, बैरो व्हील। हाँ उससे सर उसके बाद जे को गया कैपिटल, जे राइट, से के को गया सर। और के के बाद वो जो डॉफर व्हील है सर उधर तक गया सर। डॉपर भी यल को गया और यल से यस फिर आपका डॉपर को मिला, बराबर है। यस तो सर। देखो, जिसको समझ नहीं आया मैं उसके लिए बताता हूँ, इसने सही बताया ऋषिकेश ने। सिलेंडर से ड्राइव गया है पुली बी को, पुली बी से ड्राइव गया है पुली सी को, सी से ड्राइव मिलता है टेकर इन को, राइट। टेकर इन से ड्राइव मिलता है दिस पुली डी को जो कि टेकर इन ही कैरी कर रहा है, राइट। फिर पुली डी से ड्राइव गया है ई को, ई से ड्राइव गया है इंटरमीडिएट गियर एफ को, एफ से ड्राइव गया है जी को, राइट। फ्रॉम जी द ड्राइव इज गिवन टू द व्हील एच, फ्रॉम व्हील एच द ड्राइव इज गिवन टू द व्हील J, sorry, from wheel J the drive is given to the wheel K, and from K the drive is given to the wheel L। और इस L के ऊपर शाफ्ट है, राइट, जो डॉफर को रन कर रहा है, जो डॉफर को रन कर रहा है। तो इस तरीके से ड्राइव गया है, ठीक है। सिलेंडर से या ऐसे ऐसे ड्राइव गया है, ठीक है, इस तरीके से ड्राइव गया। अब किसी ने तो बीच से ही बताया था कि डॉफर को ड्राइव कैसे गया, तो टेकर इन का स्पीड ऐसे भी चलता है, डायरेक्टली टेकर इन का स्पीड अगर आपने लिया तो भी चलता है, क्योंकि आपने क्या किया, इसकी पहले वाले स्टेज में सिलेंडर से टेकर इन का स्पीड आपने निकाला है, टेकर इन का स्पीड आपने निकाला है, तो आप टेकर इन का स्पीड डायरेक्टली लेके आगे चल सकते हो। मतलब अगर आपको डॉफर का स्पीड निकालना है तो यू कैन टेक फॉर्मूला लाइक टेकर इन स्पीड इंटू डी बाई ई इंटू एफ बाय जी इंटू एच बाई जे इंटू के बाई एल, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिलेंडर से क्यों जा रहे हैं, आपको समझ में आने के लिए, हर बार हम सिलेंडर से ही जाएंगे आपको समझ में आने के लिए। आप बीच के रोलर भी ले सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है टेकरिंग का स्पीड, तो फिर से सिलेंडर आरपीएम इंटू बी बाई सी करोगे तो टेकरिंग का स्पीड ही आएगा, तो डायरेक्टली आप टेकरिंग स्पीड लेके आगे जा सकते हो, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हो। अब बताओ, डॉफर का हो गया, टेकरिंग का हो गया, अब फीड रोलर को ड्राइव कैसे गया वो बताओ, फीड रोलर को ड्राइव कैसे गया। अब आप डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आप डायरेक्टली आगे वाले रोलर्स यूज कर सकते हो। अब सिलेंडर का यूज मत करो, ड्राइव तो सिलेंडर से ही जा रहा है, बट आगे वाली स्पीड हम निकालते जा रहे हैं, इसका मतलब आगे वाली स्पीड से हम ले लेंगे। अब बताओ फॉर्मूला कैसे फीड रोलर को ड्राइव जाता है, देख के बताओ। सर डॉपर व्हील टू एम, एम टू एन, हाँ, एन टू ओ, ओ टू पी, पी टू फीड रोलर व्हील क्यू। ओ टू पी, बस हो गया ना, और क्या है, ओ टू पी, पी के बाद तो रोलर ही है ना, ठीक है, तो बराबर है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, डॉपर का स्पीड, डॉपर से स्पीड गया किसको, बीवेल एम को, बीवेल व्हील एम को, उससे स्पीड मिला बीवेल व्हील एन को,
और उससे स्पीड मिला बीवेल व्हील ओ को, और उससे स्पीड मिला बीवेल व्हील पी को, राइट। और पी के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये शाफ्ट है, पी के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट किसको रन कर रहा है? स्पीड रोलर को कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से स्पीड रोलर को ड्राइव जाता है। अब आप मुझे बताओ लैप रोलर को ड्राइव कैसे गया है? लैप रोलर को ड्राइव कैसे गया है वो बताओ। सर क्यू टू टी। क्यू टू टी, क्यू से टी को गया है। ओके, स्पीड रोलर स्पीड इंटू क्यू बाई टी बराबर है लैप रोलर को। अब बताओ कैलेंडर रोलर को। कैलेंडर रोलर यहाँ पे है, कैलेंडर रोलर। सर डॉफर व्हील से कैरियर व्हील, उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू, उसके बाद कैलेंडर रोलर। कैलेंडर का बताया ना, कैलेंडर का। यस सर। डॉफर से ये व्हील एल और यहाँ से ये व्हील डब्ल्यू, डॉफर से ये व्हील एल और इस व्हील से व्हील डब्ल्यू कैलेंडर को मिलता है। तो इतना सिंपल है। अब मुझे बताओ डॉफर कोम को कहाँ से स्पीड मिला है? डॉफर कोम को, यहाँ पे डॉफर कोम है, ये दिस इज डॉफर कोम, इसको स्पीड कहाँ से मिला है? कैसे स्पीड आ रहा है बताओ। Small cylinder wheel B2H. आवाज कट रहा है। बताओ। The cylinder wheel B2 हाँ B2H H to small j to K to I will ओके, पुली है वो, पुली है वो, पुलीज है, सारे पुली है वो। ओके ठीक है, बराबर है आपका। मैं बताता हूँ सिलेंडर स्पीड, सिलेंडर से आपको यहाँ पे एच को मिला है ड्राइव, एच पुली को, एच पुली को मिला है। इस एच पुली से ड्राइव आया है जे पुली को, जे से ड्राइव आया है के पुली को, के से ड्राइव आया है आई पुली को, और आई पुली से आपको ड्राइव डॉफर कोम को गया है थ्रू डॉफर कोम बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से डॉफर को मिला है स्पीड, डॉफर कोम को, सॉरी डॉफर कोम को स्पीड मिला है। अब ये हो गया पूरा गियरिंग, कैसे ड्राइव ट्रांसफर हुआ है ये हमने अभी देखा। अब इसके बेस पे आपको अभी कैलकुलेशंस देखने हैं, इसके बेस के ऊपर आपको अभी कैलकुलेशंस देखने हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का स्पीड हम दे देंगे क्योंकि मोटर का यहाँ पे कुछ ये नहीं है, सिलेंडर का स्पीड आपको मिल जाएगा। वहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टेकर इन स्पीड, डॉफर स्पीड, फीड रोलर स्पीड, लैप रोलर स्पीड, कैलेंडर रोलर स्पीड, स्पीड ऑफ डॉफर कोम, ये सारे आपको चीजें निकालने। तो कैसे निकालने, क्या करना है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसका कैलकुलेशन देखेंगे। आपका गियरिंग कैलकुलेशन थोड़ा वीक दिख रहा था इसीलिए मैंने ये पार्ट लिया, अदरवाइज आई डोंट जनरली टेक दिस पार्ट, क्योंकि ये ऐसा मान के चलता हूँ मैं कि आपको ये पता है, क्योंकि आप फाइनल में आ चुके हैं और ये सारी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाते हैं टेक्सटाइल मैथमेटिक्स में, by considering that you are knowing all the fundamentals related to the machineries whatever you are studying. ओके ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे आपको बताया कि ड्राइव कैसे जाता है, ड्राइवर ड्रिवन कैसे रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। जस्ट होल्ड, लेट मी टेक द अटेंडेंस।